महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और केवल भारतवर्ष के राष्ट्रपिता नहीं है। महात्मा गांधी पूरे विश्व के अपोस्टल ऑफ पीस हैं, शांति दूत है पूरे विश्व के लिए। जब उनके धड़ को अलग कर दिया जाता है कैलिफोर्निया में, उनके स्टैचू के धड़ को, तो कोई भी इनमें से जो आज ट्वीट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फिगर बने हुए हैं, उनमें से किसी ने ट्वीट किया? किसी ने ट्वीट नहीं किया। जब 84 के दंगे हुए, इनमें से किसी ने ट्वीट किया? हो सकता है उनका जन्म नहीं हुआ हो, मगर इनके जो इकोसिस्टम के लोग हैं, इनमें से किसी ने ट्वीट किया? किसी ने ट्वीट नहीं किया। जब कश्मीरी पंडितों को निकाला जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि 3 व्यक्तियों का नाम, मगर ये जो इकोसिस्टम है, उनमें से किसी ने कश्मीरी पंडितों के ह्यूमन राइट्स के लिए ट्वीट नहीं किया। और मैं पूछता हूं, दिल्ली पुलिस के जो जवान थे, उनके हाथ कट गए, उनके ऊपर तलवार से आक्रमण हुआ, उनको कूदना पड़ा खाई के अंदर, किसी ने इनमें से तथाकथित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, किसी ने ट्वीट किया कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन है? किसी ने ट्वीट नहीं किया। और आज राहुल एंड रिहाना ट्वीटिंग। देखिए, जब राहुल गांधी मैं कहता हूं, याद करिए, ये मां बेटे जाके 2008 में चाइना में एमओयू साइन करते हैं। शी जिनपिंग बैठे हुए हैं, दोनों अगल बगल में दाएं और बाएं तरफ मां बेटे खड़े हैं, और आज ये चाइना कर रहे हैं। ये चाइना में भी मीटिंग करते हैं, चाइनीज के साथ भी मिले हुए हैं, और यहां रिहाना, ये क्या मियां खलीफा कोई है, ये सार, मैं तो कहता हूं राहुल गांधी छुट्टी बिताने कहां जाते हैं? ये जो विदेशों में जाते हैं, बार बार भागते रहते हैं, क्या करते हैं वहां जाके? ये इन्हीं लोगों से मिलते हैं। Anand Ranganathan, who's been observing this story and commenting upon it all day. I'm not going to make it political immediately, but I want to ask you, Dr. Anand Ranganathan, what do you make of this? Are we being too sensitive, too insecure, too touchy? Good evening, Rahul. By the way, that was a brilliant monologue. I think you summarized the whole events that are happening around us absolutely perfectly. Thank you. The fact of the matter is that this is the theater of the absurd. Welcome to the theater of the absurd. This is how such revolutions end, in a farce, where foreign politicians, pop stars and porn stars all jump in, hoping to extract their pound of flesh in cash or kind. Inhaling these ignorant voices, do these dynasty slaves and chauthi fails leftists even realize the joke they have become? One wonders if India at all has a school or a college system. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? A child activist is standing with those who are mindlessly pumping pesticides into our crop, emptying out our land of all water, turning our atmosphere into a gas chamber by burning stubble, and these guys are hailing her. A multi-billionaire capitalist singer is fighting to deny the fruits of capitalism to 200 million farmers, and these Indians are hailing her. This is not a crisis. This is a circus. These anarchists know that while they can get the press and the porn stars or both to amplify their cause, what they can never get is the vote. That's the real show of strength. But because it happens every 5 years, these Muppets, they get 4 years to create mayhem. The flanking 6 months, of course, are spent by them to recover from their defeat and lost deposits. I think Japan's Shinzo Abe had really cracked it. Any big reform that he put on the table, he called for a general election. And after he won it, he brought in the reform. Don't think it can happen in India, of course, but you get the drift. The essence of anarchism, Rahul, is to amplify the tiny minority and make it appear as a huge majority. And the only reply to that is that the vote of the huge majority happens. Perhaps the time has come for the silent majority of farmers, 90% of them, to come out and say they support these reforms through petitions or peaceful and legal marches. Because right now, the world is being hoodwinked by these idiots into believing that all 200 million farmers are opposed to these reforms. The reality is totally different. Rahul, please give me 30 seconds. I repeat, which farmer in his right mind would object to deciding the price of his own produce, given that faulty MSP evaluation has cost him a loss of 45 lakh crores in the last 15 years? True. Which farmer would object to sustained production and top quality godowns set up to store his produce, as the government can no longer jail the godown owners on account of whimsical ECA declarations or hoarding? Which farmer would object to private companies rushing in to sign a contract with him? No small print. In wanting to halt Modi, these deranged Muppets are halting India. And right now, believe it or not, they can make any sane Indian believe there is a ring to truth in that half funny, half bombastic Modi meme, where he's looking straight into you and saying, in reality, they are not after me, they are after you. I'm just in the way. Music. अभी तहसीन भाई ने बहुत ही चालाकी से कहा कि मैं कई बार राहुल गांधी से मिला हूं और बड़े सारे डिस्कशन हुए हैं, मैं उनके आईक्यू के बारे में जानता हूं, मगर यहां डिस्कशन नहीं करूंगा।
वो भी जानते हैं और सच में वो डिस्कशन भी नहीं करना चाहते हैं। ये 100-100 टन का पत्थर रख के अपने दिल के ऊपर लोग कितने दिन तक डिफेंड करेंगे राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी का आईक्यू कितना है, मोदी जी का आईक्यू कितना है, इस विषय पे डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है, देश की जनता जानती है। देखिए एम फॉर उन्होंने कुछ नाम गिना है, एम फॉर मियां खलीफा भी तो है, राहुल गांधी जी की अजीज मित्र, राहुल गांधी जी के लिए आज ट्वीट करने वाली मियां खलीफा, उसका नाम भी तो एम से शुरू होता है। उसने तो डिक्टेटरशिप के खिलाफ कहा है, उसने तो कहा है कि किसानों के साथ मैं खड़ी हूं। तो ये एम नाम को बदनाम क्यों कर रहे थे? कम से कम राहुल गांधी जी को मियां खलीफा के पक्ष में तो ट्वीट करना चाहिए, कम से कम मियां खलीफा के ही खातिर राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए। बाकी महात्मा के खातिर ना सही, क्योंकि राहुल गांधी महात्मा जी को कुछ मानते नहीं होंगे, मगर मियां खलीफा को तो मानते हैं। तो मियां खलीफा के कारण राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, नहीं तो आपकी मित्र नाराज हो जाएगी, आपकी साथी नाराज हो जाएगी और आप लिखिए कि नहीं नहीं मियां खलीफा डिक्टेटरशिप के लिए नहीं है। भारत टुकड़ों में बटे और लड़ता रहे और देश आगे ना बढ़ पाए। इसे आप अंतरराष्ट्रीय टुकड़े टुकड़े गैंग भी कह सकते हैं। आप समझ रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय टुकड़े टुकड़े गैंग जो किसी भी मौके पर भारत को तोड़ने का प्रयास करती है। आप इसे बांटो और राज करो वाली नीति भी कह सकते हैं। आप जानते हैं यही कृषि कानून की आड़ में हो रहा है। जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्हें किसानी का या किसान बिल का काखा गा नहीं पता। मतलब ये पॉप स्टार्स नहीं हमारे लिए ना, मैं ताल ठोक के कहता हूं, ये प्रोपोगेंडा स्टार्स हैं जो चंद पैसे और अपने निहित स्वार्थ के लिए भारत में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे रियाना हो या मियां खलीफा हो या ग्रेटा हो, किसानी का काखा गा नहीं पता इनको, लेकिन ज्ञान दुनिया भर का दे रहे हैं भारत को। मतलब सोचिए, ये भारत को किसानों के अधिकारों पर लेक्चर दे रहे हैं। रियाना, मियां खलीफा, मीना हैरिस, ग्रेटा, इनको काखा गा नहीं पता किसानी का। अफसोस इस पर नहीं है, वो तो भारत के देखे टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। परेशानी यहां के कुछ जयचंदों से है जो रियाना को, मियां खलीफा को अपना किसान नेता मानने लगे। लेकिन इतना तय है कि ब्रिटिश काल नहीं है जब देश को बांटा जा सकता था। यह नया भारत है, एकजुट है, साथ है, सशक्त है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।